So what we are saying, as the first question is saying, what is the difference between number of people who join marketing and people who join in finance? So what I'm doing, everywhere the marketing is more than finance, the gap between them is 24%. Here it is 31%. Here it is 20%. So 20% of 1100 will come out to be how much? 20% of 1100 will come out to be kitna? 220. Fine. So, and then it is coming out to be what? This is 18. 19 plus 18 is 37. The 1% of this is 12 and 18% of this is 12 into 18. 18 2s are 36, 18 1s are 18, 216. So you got 216 here. Here it is 0. So I got 192. I got 201. I got 220. I got 216. So if you look at this is 6 2 8 1 is 9, 9 10 12, and this is coming out to be 2 4s are 8. Approximately your answer is coming out to be 829. I'm sure that the closest to that will be 830. So C is your correct answer. C is the correct answer. That is 830. Okay, let's move ahead. Come to the question number then second. In 2016, by how much approximately did the total salary in rupees 1000 given to the candidate employed in the field of finance exceed that of candidates employed in the field of software? So 2016 के बारे में पहली बात कर रहे हैं, and we are talking about finance, and one is finance and second is the software. Fine. So the total salary, how much approximately did the total salary in 1000 given to the candidates exceeds that of software? This is what is given here. So what I do is I'll start with this. First is finance. It is 32%. Software is 20%. But 32%, the average salary of finance is 9810, while that of software is 8640. Fine. So let's talk first about the finance. Finance is given as a 1050, and I know I need to find out 32% of it, where every guy is getting 9810. You need to look at your options. The options are very close, 1600 and 1670 and 1560. So I cannot take 33%, otherwise I would have done 1/3 of it. So 32% hai iska. This is what you can do. I will simply cancel out these values, and I'm getting 32 into 105 into 981. This is for the finance. What about the software? The software is again 1050 is the number of graduates who pass out. 20% of them are in software and they're getting a salary of 8640. I hope all of you can understand this. You need to simply multiply these values to get your answer. So 32 into this, 32 into 100 is 3200, and 5 times of this is 160. So 3200 plus 160 will come out to be 06336. So I'll get 336 into 981, and of course there's 10. Vedic maths I have already taught you. 6 ones are 6. This is 8 6 are 48 plus 3 is 51. 3 ones are 3 plus 5 is 8. 8 plus 9 6 are 54. 54 plus 8 is 62. 62 plus 8 3 are 24. 62 plus 24 is 86. I'll write 86 ka 6. 8 is carry. 8 3 are 24 plus 8 is 32. 32 plus 27 is coming out to be 59. 59 ka 9. 5 is carry. 9 3 are 27 plus 5 is 32. So this is the revenue that I'm getting from finance. What about this? I'll simply cancel it. 210 and 2 zeros are already there. It's 8640 into 210. So double zeros will of course come there. So what about 21 times of this? So I know first what I will do is 10% of this is if I have already cancelled out these value. The 20% of this will come out to be 86 ka double. 8 6 are 12. 16 172.8 ये आ गया. So 20 times of that, if I'm saying 20 times of this, I'll attach a 0 before it, and 1 time of this is 864. Just add these values, you'll get the answer. 8 plus 2 is 10, and this is 18. 14400. You need to subtract these values. The values are given in thousands.
So don't worry about it that so many zeros are coming. If you find out the difference, it is 0. This is 6. This is 7 plus 4 is 11. This is 1. And this one is 8. This is 8 plus 4. And that comes out to be 1481.760. So I would say approximately is already the word used. I'll say the first one will be the correct answer. I'm sure you are able to understand it. I have done this calculation only to make you understand that the calculations are not really very lengthy. I could have leave it here and say ki multiply kar lena and then you will get the answer. But here in this case, I will like to recommend you that even the calculation will not be taking much time. Let's come to the next one. Which year did the maximum percentage increase in the number of graduates over the previous year during the given period? कह रहा जी सबसे ज्यादा ग्रोथ कब हुआ ग्रेजुएट्स में? तो यहां तो डाउन हुआ है. यहां पर देखिएगा, दिस इज 450 का इंक्रीमेंट हुआ है. Here there is 100 का इंक्रीमेंट. Here it is going down. So I'll say the highest growth is of 450 from 650, which is happening in year 2014. कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. आंसर इज 2014. कहीं 100 बढ़ रहा है, कहीं कम जा रहा है, तो हाईएस्ट ग्रोथ जो है, चेंज भी नहीं लिखा. द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट ओवर द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज 450 के नजदीक भी कोई नहीं है. एंड दैट टू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज 650. तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड इज टेकिंग लिटिल मोर टाइम, हियर द टाइम टेकन इज वेरी लेस. Okay, let's move to the next one. After that, it is question number 4. In which year the average salary of graduate employed in the field of finance recorded the maximum percentage? Average salary किसकी? Finance वालों की recorded the maximum percentage increase over the previous year. सबसे ज्यादा finance वालों की salary कहाँ बढ़ी है? एवरेज सैलरी के बारे में बात करिए. दिस इज 30 एंड दिस इज 930 इज द इंक्रीमेंट हियर. हियर इट इज कमिंग आउट टू बी कितना? 70. दिस इज 64 1170. हियर इट इज coming out to be 1370 and here it is 910. So मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट है 1370 का. Here the increment is 1170. Here the increment is 930. I cannot say this is the highest growth because it is talking about, I don't know why you people do all these things, So after this, it is coming out to be the highest is coming out in which field? So it is coming out to be 930 का इंक्रीमेंट हुआ है फ्रॉम 450. 10% ऑफ दिस इज 445. 20% ऑफ दैट विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट 1100. यहां पर देखिएगा 10% इज 638. 20% ऑफ दैट इज 1300 समथिंग. हियर इट इज. तो मुझे निकालना है कि कौन सा वाला ज्यादा है. तो पहला ऑप्शन इज 930. कहीं पे आपको जो ऑप्शन दे रखा 2013, 14, 15, 16 दे रखा है, दैट इज 4. So this is coming out to be 10% of it and 20% ज्यादा है तो किससे 18 5 90 होता है. बट ये करीबन 17% के करीब का ग्रोथ होगा. तो 2017-13 में इट इज 17% ग्रोथ. 2015 में व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ? द परसेंटेज ग्रोथ विल कम आउट टू बी 1370 फ्रॉम 7550. I'll cancel it. 10% of this is 75. तो 75 के टेबल में 137 कब आता है? So 75 ones are 75, 25, and this is coming out to be 42, 62. Around 18% is the growth. So that is coming out to be 18% growth. The next one is, earlier it was 17% growth, now it is 18% growth. The next one is 1370 का growth है भैया 7550 से. So what I will say is the 10% of this is 75.5. Sorry, this is already taken. The next one is negligible because it is going down. So मेरा आंसर इन सब में से 18% is a higher value. I will say that will be my answer. तो 18% का आंसर कब हुआ है? 2015 is the highest percentage growth. I hope it is clear. Fine. Let's move to the next one. Question number 4 तक हो गया है इसका. अब
Question number 5th onwards. This is the most interesting question. I don't know how many of you have tried it. Question number 5 to 10. How many of you have done it? Please say yes, no. No. Okay, yes. There's one student who is saying that 2014 growth is more than 20%. You can cross check it. It is not coming out to be more than 20%. क्या 1/5 से ज्यादा growth है? चेक कर लीजिएगा इसे. So here is the next one. The summer camp 10 events are organized which are categorized among 5 group. तो 5 ग्रुप में डिवाइड हैं. तो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, मोटर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स है, अंडर वाटर एक्टिविटीज है एंड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है. दीज आर द 5 इवेंट्स. ठीक है, एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन. Each event of adventure sports, motor sports and water sports is evaluated out of 100. ये सारे 100 में से मार्क्स दिए हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स के, मोटर स्पोर्ट्स के, वाटर स्पोर्ट्स के. जबकि द फाइनल स्कोर इज द सिंपल एवरेज ऑफ द ग्रुप स्कोर्स. जो फाइनल स्कोर है दैट इज इन सबका सिंपल एवरेज लेना है. द क्यूमुलेटिव सम ऑफ द पॉइंट ऑफ ईच स्टूडेंट इज द सम ऑफ द पॉइंट इन दैट इवेंट. द डेटा ऑफ द टॉप 10 स्टूडेंट इज गिवन बिलो. तो ये टॉप 10 स्टूडेंट्स का आपको डेटाबेस दे रखा है. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पहले क्या करना है. बंजी जंपिंग इज गिवन आउट ऑफ 100, पैराग्लाइडिंग इज गिवन आउट ऑफ 100, रॉक क्लाइंबिंग इज गिवन आउट ऑफ 100. So I need to find out the average score of them with respect to 100, so that I will get an average score of adventure sports. Motor sports mein there is only one game, so 97 is itself the average of it. In case of water sports, you will take the cumulative of this and then divide it by 2. तो वो उनका average आ जाएगा. यहां पर अंडर वाटर एक्टिविटीज द स्कोर आर गिवन आउट ऑफ 50. मेंशन है अंडर द वाटर, अंडर वाटर एक्टिविटीज evaluated out of 50 and the event of extreme sports are evaluated out of 50, 200. The final score of the student is calculated in the following manner. First the group score out of 100 are obtained. तो पहले आपको आउट ऑफ 100 स्कोर लेना है. तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में बंजिंग जंपिंग आउट ऑफ 100, पैराग्लाइडिंग आउट ऑफ 100 है, रॉक क्लाइंबिंग आउट ऑफ 100. आप इन तीनों को ऐड करोगे, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइड बाय 3 करोगे तो आउट ऑफ 100 आ जाएगा स्कोर. क्योंकि अगर आप तीनों को ऐड कर रहे हो तो योर स्कोर इज कमिंग आउट ऑफ 300. यू डोंट वांट इट टू बी आउट ऑफ 300, यू वांट इट टू बी आउट ऑफ 100. सो यू नीड टू डिवाइड इट बाय 100. मोटर वाटर स्पोर्ट्स में दोनों को आप ऐड करोगे, योर स्कोर इज कमिंग आउट ऑफ 200. यू वांट टू कन्वर्ट इट आउट ऑफ 100, तो 2 से डिवाइड कर लोगे सो दैट द स्कोर विल कम आउट ऑफ 100. अंडर वाटर एक्टिविटीज में 2 है, स्कूबा डाइविंग एंड फिशिंग. दोनों के स्कोर आउट ऑफ 50 है. ध्यान से सुनना, अगर आप दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका जो स्कोर आएगा वो आउट ऑफ 100 आएगा. एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में इट इज रैपलिंग एंड केकिंग. दोनों को अगर आप सम करोगे यू विल गेट योर स्कोर आउट ऑफ 400. यू वांट एवरेज स्कोर, यू नीड टू डिवाइड इट बाय 4. दैट विल गिव यू द स्कोर. द फाइनल स्कोर विल कम आउट टू बी 93.2. पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. यहां तक किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी कि सर ये क्लियर नहीं हुआ, एनीथिंग. Okay, so I'm starting now. So question number 5 I'm doing it. If B and G have same final score, B and G का same final score है, and have the B's point in swimming. The B का point swimming में कितना है? B का point swimming में कितना होगा, ये वैल्यू निकालना है. So first you need to find out B and G का score is same. Let's try to find out what is the score of G. We don't know. I have to find out this score. 94, 97, 91. I first add them divided by 3. मैं कहता हूँ इतनी मेहनत करना मेरे बस की नहीं है. What I will do is I will take the minimum score which is 91. So I'll consider it to be 91. This is 6 more. This is 3 more. तो ये 3 ज्यादा है 91 से, ये 6 ज्यादा है, तो टोटल 9 ज्यादा हो गया. If you divide it among 3, that comes out to be 94. तो आपने कहा G का इन तीनों का कंबाइंड स्कोर आ गया 94. यहां पर इट इज 92. इन दोनों का कंबाइन करोगे तो 94 का 94 ही रहेगा. ये दोनों आउट ऑफ 50 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 88 आ जाएगा इनका. यहां देखो 186, 190 है, मैं कहूंगा 186 मान लेते हैं, वो 4 ज्यादा है, डिवाइडेड बाय 2 करो तो 188 आ गया. दिस इज एवरेज स्कोर आउट ऑफ 200. 100 से निकालने के लिए स्कोर 2 से डिवाइड कर लो तो स्कोर आ जाएगा 94. तो आपके स्कोर क्या आ रहे हैं, आप देखो 90 पहले वाले पार्ट का जो स्कोर आ रहा है, दैट स्कोर इज कमिंग आउट टू बी 94.
सेकेंड वाले का स्कोर आ रहा है आपका 92, इधर देखिएगा 92, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थर्ड वाले का स्कोर आ रहा है 94, फोर्थ वाले का स्कोर आ रहा है 88, फिफ्थ वाले का स्कोर आ रहा है 94। तो आपको इसका टोटल एवरेज स्कोर निकालना है, टोटल फाइनल स्कोर निकालना है आपने इसका। All of these scores are coming out of 100. What is the minimum value out of them? That is 88. How much is the first one more? 6 more. How much is the second one more? 4 more. Third one, 6 more. Fourth one, 0 more. Fifth one, 6 more. That needs to be divided by 5. Why? Because average nikalna hai. 6 plus 4 is 10, plus 6 is 16, plus 6 is 22, by 5 is coming out to be 4.4, which is 92.4. तो आपने कहा इसका फाइनल स्कोर जो है वो 92.4 आ रहा है, तो दिस स्कोर विल आल्सो कम आउट टू बी 92.4. एनी डाउट यू कैन आस्क मी टिल दिस पॉइंट. Okay, so let me move ahead. After that, in the question it is asked, what is the point of B in swimming? तो हम निकाल लेते हैं पॉइंट स्विमिंग में इसका कितना स्कोर होगा. बी का देखिए 92.4 है, पहले इसका एवरेज निकाल लेते हैं. दिस इज 86, 92 एंड 95. I'll consider the average to be 96. This one is 4 more. 4 or 6 more? 6 more. This one is 9 more. तो आपने कहा एक का 6 ज्यादा, एक का 9 ज्यादा, 15 ज्यादा, divided by 3 is 5. That average of this comes out to be 91. तो बी का पहले का स्कोर आया 91. सुती अंडर वाटर आउट ऑफ 100 है मैम, लेकिन अगर आप दोनों को जोड़ लोगे तो आउट ऑफ 100 हो जाएगा और उसी का स्कोर आउट ऑफ 100 चाहिए. तो इसीलिए हमने ऐड करने के अलावा उसमें कहीं से 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं किया. आपके दो पेपर है, दोनों आउट ऑफ 50 है, अगर आप कंबाइन करोगे तो आउट ऑफ 100 हो जाएगा. तो वी सिंपली एडेड देम. सो आई एम श्योर दैट बी का स्कोर सबको समझ में आ गया होगा. 86 इज द वैल्यू दैट आई हैव टेकन. दैट इज 6 मोर, दिस इज 9 मोर. 9 प्लस 6 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5. 86 प्लस 5 इज 91. तो हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स का बी का आ गया 91. मोटर स्पोर्ट्स का क्या होगा? मोटर स्पोर्ट्स का इट इज ऑलरेडी अ स्कोर ऑफ 92. हम इसे ऐसे ही उतार लेते हैं 92, कुछ करना ही नहीं है इसमें. अंडर वाटर का हमें पता नहीं, सॉरी वाटर स्पोर्ट्स का हमें पता नहीं. एक्स मान लेते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या है, पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे रखा, आई कंसीडर टू बी एक्स. स्कूबा डाइविंग का, सॉरी अंडर वाटर एक्टिविटीज का, इट इज गिवन 46 एंड 46. व्हाट इज द सम ऑफ दिस? 92, क्योंकि दोनों आउट ऑफ 50 है. थर्ड वन इज 187, 189, दो ज्यादा है, डिवाइड बाय 2 इज 1, 188, 188 is 94. This is extreme sports. आपने कहा इन सबको सम करूंगा, डिवाइड बाय 5 करूंगा, 92.4 आना चाहिए. और जब इन सब का सम करके डिवाइड बाय 5 करके 92.54 आ रहा है, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 5, this value will give me the sum of these value. तो 4 5s are 20, 5 2s are 10 is 12, 1 carry, 9 5s are 45, 46. तो 462 चाहिए इनका सम. तो हमने कहा भाई 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 4 is 9. इनका सम यहाँ कहीं लिख लेता हूँ. तो यहाँ 9 आ रहा है एंड 9 9 18, 9 4 36, 369 आ रहा है. आपने कहा ये 362 होता तो 100, तो 7 कम का मतलब 91 आना चाहिए था ये. Is that fine? So 369 is the sum. 369 में अगर 100 जोड़ता तो 469 होता. आपने कहा सर 7 कम कर लो, सॉरी 93 होना चाहिए. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 93. अब यहां देखना आपने, ये 92 है, ये कितना होगा कि एवरेज 93 हो गया. अगर 93 इज 1 मोर देन दिस, इट शुड बी लेस देन दिस. सो आपका स्कोर कितना होना चाहिए? 94. दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड इट. दोबारा सुनिए, हमने कहा बी का एवरेज निकाला, एडवेंचर स्पोर्ट्स का एवरेज निकाला, आपके सामने 90 हो गया. मोटर स्पोर्ट्स का 92, हमने कहा पता नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, भगवान जाने क्या होगा, मैंने एक्स ले लिया. देन इट वाज गिवन एज अ 46, 46, 92 हो गया. एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का हमने करा 188 डिवाइडेड बाय 2 करा, क्योंकि 200 में से 188 इज द एवरेज स्कोर. हाफ ऑफ दैट आउट ऑफ 100 इट इज 94. आई सम देम. This is coming out to be total 400 and this is coming out to be 369 is the sum of it plus x.
बट हमने कहा इनका एवरेज डिवाइडेड बाय 5 इज 92.4 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 5 किया, दैट कम्स आउट टू बी 462। तो 469 में x ऐड करके आपने कहा 462 होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करा तो x की वैल्यू 93 आ गया है। अगर x 93 आया है तो एक में इसका स्कोर 94 है, सॉरी एक में, सॉरी हमने ये 92 इधर ले लिया, एक में इसका स्कोर 94 है, दूसरे में इसका स्कोर कितना होगा ताकि एवरेज 93 आ जाए, तो आपको होगा 92 होगा। दोबारा सुनिए, एक में 94 है, दूसरे में मुझे पता है, बट कंबाइंड ऑफ दिस इज कमिंग आउट टू बी 93। सो इफ दिस इज वन मोर, दिस हैज टू बी वन लेस, सो द एवरेज स्कोर ऑफ दैट विल कम आउट टू बी कितना, 92। योर आंसर इज 92। आई होप इट इज क्लियर। एनीवन हैविंग एनी डाउट कैन आस्क मी। Please, I'm waiting for your response. If it is clear, write yes. Okay, I got many yes. Fine. So let's move ahead. Question number 6. If D's cumulative sum of point is increased by 20, D के जो point है वो 20 बढ़ गए, total points D के total 20 है, such that he has a maximum possible final score. इसका maximum final score जो है ये maximize करना मुझे। आपको 20 पॉइंट दिए हैं कि कहीं पे भी इन 20 पॉइंट को आप यूज कर लो ताकि आपका फाइनल स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स डी कैन हैव इन वाटर डाइविंग। डी वाटर डाइविंग को कितने मैक्सिमम पॉइंट दे सकता है? राइट नाउ इट इज 93। हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी देयर इन वाटर डाइविंग? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के किसी भी पॉइंट, किसी भी गेम को, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग या रॉक क्लाइंबिंग को एक पॉइंट देता हूं, उस पॉइंट की स्थिति कैसी होती है? मैं आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले पॉइंट देने का क्या क्या स्थिति होती है। आई गिव फर्स्ट 1 पॉइंट टू देम, देन व्हाट हैपेंड इज, वो पॉइंट देने के बाद सबसे पहले मैं उसे 3 से डिवाइड करता हूं। मान लो मैंने बंजी जंपिंग को एक पॉइंट दिया है, तो आप उसे 3 से डिवाइड करोगे ताकि एडवेंचर स्पोर्ट्स का एवरेज स्कोर आ सके, और फिर आप उसे 5 से डिवाइड करते हो, तो इन एडवेंचर स्पोर्ट्स द वैल्यू ऑफ 1 पॉइंट इज बाई 15। तो फाइनल स्कोर में अगर मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर किसी को भी एक पॉइंट देता हूं तो फाइनल स्कोर में दैट विल बी इक्वल टू 1/15। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं मोटर स्पोर्ट्स में देता हूं तो मोटर स्पोर्ट्स में उसका कुछ नहीं होता है, एक पॉइंट को आप एक ही बार 5 से डिवाइड करते हो, उसकी फाइनल स्कोर में उसकी वैल्यू, फाइनल स्कोर में उसकी वैल्यू होती है 1/15, यहां पर होता है 1/5। वेरी गुड। व्हाट अबाउट वाटर स्पोर्ट्स? वाटर स्पोर्ट्स में आप एक पॉइंट देते हो, पहले उसे 2 से डिवाइड करते हो, फिर 5 से डिवाइड करते हो, द वैल्यू ऑफ दैट कम्स आउट टू बी 1/10। अंडर वाटर एक्टिविटीज में अगर आप जाओ, अंडर वाटर एक्टिविटीज में अगर आप जाओ तो वो दोनों सिंपल ऐड होते हैं और एक ही बार 5 से डिवाइड होते हैं, द वैल्यू ऑफ दैट इज आल्सो 1/5। फाइनल स्कोर में, फाइनल स्कोर की वैल्यू इतना है। अब आते हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट, सॉरी देयर इज लेसर इज, या यहां लिख देते हैं। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो एक पॉइंट को पहले आप क्या करते हैं, 2 से 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 400 होता है तो यू विल डिवाइड दैट बाय 4 एंड देन यू डिवाइड बाय 5, सो वैल्यू ऑफ दैट विल बिकम 1/20। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी गेम को मैं एक पॉइंट देता हूं तो हर एक फाइनल स्कोर में हर एक की अलग अलग वैल्यू आएगा। आपने कहा है मुझे मैक्सिमम पॉसिबल फाइनल स्कोर चाहिए, तो मैं पॉइंट सबसे पहले जो दूंगा मैं मोटर स्पोर्ट्स को दूंगा। डी में मोटर स्पोर्ट्स को मैं 2 पॉइंट दे सकता हूं, क्योंकि आउट ऑफ 100 है, मैं उसे 110 नहीं कर सकता, मैं उसे 100 से ज्यादा नहीं कर सकता। अंडर वाटर एक्टिविटीज में आई कैन गिव 7 and 8 15 पॉइंट्स टू दिस, 15 + 2 17 पॉइंट चले गए हैं, 3 पॉइंट बचे हैं, फिर मैं दूंगा 1/10 वाले को, वाटर स्पोर्ट्स में आता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स बचे हैं, तो आई कैन, बिकॉज आई नीड टू गिव द मैक्सिमम पॉइंट टू द वाटर डाइविंग, आई विल गिव 3 पॉइंट्स टू इट। सो जो इसका 93 है उसमें 3 और इंक्रीमेंट हो गया, तो उसका स्कोर कितना हो गया है?
96. So how much points can be given to D in water diving? I'll say that is 96. I hope it is clear to all of you. Please ask if there is a query. Or if it is clear, say yes. Great. Almost everyone. कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं, उनका कुछ हो नहीं सकता. भाई साहब आपसे पूछा है, या बहन जी, अगर आपको समझ में आया है तो यस लिखो, नहीं तो कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अगर आगे चला गया तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए वापस आना हो. ओके, आई होप इट इज क्लियर. मत पूछो. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number 7 is, question number 7 says, what can be the maximum possible increase in cumulative sum of point of I such that his final score increases by 2. अब ये उल्टा कह रहा है. ये कह रहा है I का स्कोर कुछ नहीं करना, मुझे 2 से इंक्रीज करना है. I want to increase the final score by 2. इधर देखिए, increase the final score of I by 2. What is the maximum possible increase in cumulative sum of points? क्यूमुलेटिव सम ऑफ पॉइंट्स का मतलब होता है कि आई को कितने टोटल पॉइंट्स आप दोगे, लेकिन उसका स्कोर सिर्फ 2 बढ़ना चाहिए. आई एम श्योर आई हैव एक्सप्लेन इट कि अगर आप किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स में किसी को अगर पॉइंट देते हो तो उसकी वैल्यू 1/15 होती है फाइनल स्कोर में. रीजन, इफ यू आर गिविंग एनी पॉइंट टू बंजी जंपिंग, दैट विल फर्स्ट बी डिवाइडेड बाय 3 एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 5. In motor sports, each point will be equal to 1/5. I'm sure that is also clear. Water sports में any point will be divided first by 2, then divided by 5. 1/10. Here it is 1/5. Here it is 1/20. आपने कहा मुझे 2 से बढ़ाना है, मैं कहूंगा ज्यादा पॉइंट देने हैं आई को, तो इनमें दो, क्योंकि इनमें 20 पॉइंट मुझे एक फाइनल स्कोर बढ़ाता है. दोबारा सुनिए, अगर मैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में इफ आई गिव 20 पॉइंट्स दैट डिवाइड बाय 20, आई विल गेट अ इंक्रीज ऑफ 1 इन माय फाइनल स्कोर. But if I give 5 points to the motor sports, that increase my final score also by 1. That increase my final score also by 1. Both of them are increasing my final score by 1. But one takes 20 points, second take only 5 points. मैंने कहा मुझे मैक्सिमम पॉइंट देने हैं, तो मैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की तरफ मुड़ता हूं. मैं 18 पॉइंट यहां दे सकता हूं क्योंकि 200 में से, और 10 पॉइंट यहां दे सकता हूं. अगर मैं 28 पॉइंट्स देता हूं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को और डिवाइडेड बाय 20 होता, तो 1.4 इज द फाइनल स्कोर में इंक्रीमेंट होता है. तो माय फाइनल स्कोर इज इंक्रीजिंग बाय 1.4 इफ आई गिव 28 पॉइंट्स टू द एक्सट्रीम स्पोर्ट्स. दूसरी बारी आ गई एडवेंचर स्पोर्ट्स की. हमने कहा 11 + 1 = 12, 12 + 6 = 18. अगर मैं 18 पॉइंट्स देता हूं एडवेंचर स्पोर्ट्स में, डिवाइड बाय 15 करता हूं, तो ये 1.2 आता है. आपने कहा सर 1.4 एंड 1.2 तो 2.6 हो गया. आप गलती कर रहे हो, आपका फाइनल स्कोर ओनली 2 से बढ़ना चाहिए. So I'll say, okay, fine, 28 points are given here. My score increases by 1.4. I don't know how many points should be given here. Say X points are given, divided by 15 should give you 0.6 score. So X is equal to 15 6 are 90 hota, so 9 points I am going to give in the adventure sports, and 28 points can be given in the extreme sports. So total maximum points that I give to increase my final score by 2 will be how much? So first it is 28 and then 9, that gives you 37 points are to be given, so that the final score increases by only 2. Option number 1 is the correct answer. If it is clear, please type a yes. If it is not clear, we'll do something.
Thank you. I got so many yes. I could understand how many of you may be feeling. Uh, some of you are not responding. Maybe you are not getting it or what. अर्चित समझा देता हूँ एक बार और. किसी और को कोई डाउट हो तो प्लीज बोल दीजिए. I'm sure you are not watching TV simultaneously. Okay. Okay, let's see here. So the question says that you need to increase your final score by 2. Final score 2 से बढ़ना चाहिए. What are the maximum possible increase in cumulative sum of points? I को maximum कितने पॉइंट दोगे ताकि आपका स्कोर सिर्फ 2 से बढ़े? इंक्रीज बाय 2 ओनली लिखा हुआ है यहाँ. तो मैंने कहा यार जब मुझे ज्यादा पॉइंट देना है तो मैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को दूंगा, क्योंकि मैं जो भी पॉइंट दूंगा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को वो डिवाइडेड बाय 20 हो जाता है. मैंने देखा रैपलिंग में 182 पॉइंट्स, अगर मैं 18 पॉइंट्स इधर रैपलिंग में दे दूं और 10 पॉइंट्स केकिंग में दे दूं, क्योंकि 200 में से स्कोर है 190 है, तो आई कैन इंक्रीज इट बाय दिस. तो 28 डिवाइडेड बाय 20 आई विल से 1.4 इज द इंक्रीज इन द फाइनल स्कोर. फाइनल स्कोर में 1.4 का इंक्रीज होगा. आपने कहा और ये बाकियों का क्या होगा? मैंने कहा बाकियों में मुझे 0.6 से बढ़ाना है. मैंने y पॉइंट दिए, आई विल डिवाइड बाय 15, दैट गिव्स मी 0.6. आप कह रहे हो क्यों बाकी क्यों नहीं लिया? 11 + 1 = 12 + 6 जो होता है वो 18 होता है यार. 18 को 15 से डिवाइड करूंगा 1.2 आएगा. 1.4 पहले आ चुका है, 1.2 और ऐड करूंगा तो ये 2.6 हो जाएगा, जो कि 2 से ज्यादा आ गया. आपने कहा 2 से ज्यादा मत करना सर, 2 ही करो. मैं कहा पता नहीं कितने पॉइंट देना, मैं y पॉइंट दे देता हूँ, डिवाइड बाय 15 करूंगा विच इज 0.6, तो y कम्स आउट टू बी 9.0, तो आई कैन गिव 9 पॉइंट्स हियर. तो 9 पॉइंट यहां दिए और 28 पॉइंट यहां दिए, तो उनका सम ऑफ द पॉइंट्स आ गया 37. इज दैट क्लियर? So the answer is coming out to be 37 from there. I hope it is clear now. Okay. Let's move to the next one then. Here comes question number 8. If C's cumulative sum of point increased by 32, C का जो point है वो 32 से बढ़ रहा है points. Which of the following is definitely false? कौन सा बिल्कुल गलत होगा? The maximum possible final score is 97.4. ये कह रहा है मैक्सिमम स्कोर 97.4 होगा. मैक्सिमम फाइनल स्कोर. आप मैक्सिमम फाइनल स्कोर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पॉइंट किसको देंगे? आप उसको देंगे जिसमें वैल्यू कम हो. एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक पॉइंट की वैल्यू 1/15 है, मोटर स्पोर्ट्स में 1/5 है, वाटर स्पोर्ट्स में 1/10 है, इसमें 1/5 है और इसमें 1/20 है. तो आई एम सेइंग 32 आर द फिक्स पॉइंट्स. जो पॉइंट्स देने हैं दैट इज फिक्स, 32 पॉइंट्स है. तो मैंने कहा मेरा फाइनल मैक्सिमम स्कोर क्या होगा, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा जी, मैं सी में से 1/5 वालों को पॉइंट दूंगा. तो 92 है, आई कैन गिव 8 पॉइंट्स यहां पर, और यहां पर आई कैन गिव 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, 3 मोर पॉइंट. तो 11 पॉइंट आई कैन गिव. डिवाइड बाय 5 होगा तो 11/5 होता है. 2.2 इज द फाइनल स्कोर में इंक्रीमेंट. दिस इज फाइनल स्कोर में ये ग्रोथ आएगा. फर्स्ट पार्ट इज डन. द सेकेंड पार्ट इज दिस इज 6 प्लस, उसके बाद वैल्यू आई 1/10 की. 6 + 2 8, डिवाइड बाय 10 इज 0.8. तो फाइनल स्कोर में 0.8 फाइनल स्कोर में बढ़ोतरी होगी. तो 3 का बढ़ गया. ठीक है, टोटल पॉइंट 11 पॉइंट्स आ चुके हैं और 8 पॉइंट आ चुके हैं. 11 + 8 = 19. अभी भी 32 में बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं. उसके बाद वैल्यू जो बारी आई है वो 1/15 की आई है. 1/15 में आई कैन गिव 6 + 11, 6 + 12 18, 18 प्लस, एक सेकेंड, 18 प्लस, सॉरी आई कुड नॉट सी दैट, 18 + 8 26. आपने कहा सर 26 तो बहुत ज्यादा हो गया, आप तो पहले ही 19 पॉइंट्स दे चुके हो. तो मैं 26 नहीं दूंगा, 19, 13 पॉइंट्स मोर आई कैन गिव. 13 डिवाइड बाय 15. ठीक है, तो 15 6 जा 90, 15 7 जा 100, 15 8 जा 120, 15 9 जा, तो आई कैन से 0.9 का और इंक्रीमेंट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा. तो 2.2 का इंक्रीज होगा प्लस 0.8 का इंक्रीज होगा. आई होप इट इज क्लियर. प्लस 0.9 का होगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी
2.2 प्लस 0.8 इज कमिंग आउट टू बी कितना, 3.9 का और इंक्रीमेंट कर लेते हैं। दोबारा सुनिएगा, हमने कहा हम सी का क्यूमुलेटिव सम ऑफ पॉइंट्स है वो 32 बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ होना चाहिए। 3 पॉइंट की बढ़ोतरी यहां से हुई और 6 की यहां से हुई, तो 9 पॉइंट इज व्हाट वी आर ग्रोइंग डिवाइडेड बाय 5। दोबारा सुनिएगा, सी का दिस इज 1 plus 2 3 3 plus 6 9 point is what, sorry this is 9 point is what I can increase it, 9 by 5 हो गया 1.8, सॉरी 1.8 का एक ग्रोथ यहां हुआ। अब 1 by 10 वाले में चेक करो, 6 यहां दे सकता हूं, 2 यहां दे सकता हूं, 8 by 10, सो दैट इज 1.8 पहले हुआ था प्लस 0.8 हुआ, ये 3.6 चला गया। आपने कहा सर कितने पॉइंट दिए हैं आपने, 9 plus 8 17 पॉइंट दिए हैं, 17 पॉइंट दिए हैं, 32 पॉइंट चाहिए, तो 15 मोर पॉइंट्स आई कैन गिव, 15 by 15 is coming out to be 1, that is coming out to be 1 more is added, 4.6 का और ग्रोथ होगा, सॉरी 1.6 plus 2.8 is 2.6 plus 1 is 3.6, तो 3.6 का ग्रोथ होगा। तो 3.6 क्या है, पहले 93.8 है, अभी 3.6 और है, तो ये 97.2 हो गया, सॉरी 97.4 हो गया है। So the score is coming out to be 97.4. Can I say the maximum possible score of this is 97.4? बिल्कुल सही आया है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको एक बार मैं क्विकली रिव्यू कर देता हूं। सी में सबसे ज्यादा फाइनल स्कोर में बढ़ोतरी करता है मोटर स्पोर्ट्स एंड अंडर वाटर एक्टिविटी। मोटर स्पोर्ट में 94 है, आई कैन गिव 6 मोर पॉइंट। इन अंडर वाटर एक्टिविटी आई कैन गिव 2 plus 1 is 3 more point. This is to be divided by 5. I'll say 1.8 का फाइनल स्कोर में इंक्रीमेंट हुआ। Then in the water sports I can give 6 plus 2 8 more points, divided by 5 is 1.6. if you sum up these value that gives you कितना 3.4, 3.4 का आपका स्कोर बढ़ गया, but the points that you have given is 17 points gone. how many more points are given, there are 15 more points, that is divided between 15. C को देखो मैं 15 पॉइंट दे सकता हूं, 18 पॉइंट तो अकेला ये लेगा, तो 1 मोर का इंक्रीमेंट, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.4 प्लस 1। सो अभी तक का टोटल आपका स्कोर जो हो गया है वो कितना हो गया है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 4.4। आई एम श्योर इट इज क्लियर। सो दिस इज 9 by 5 is 1.8, 8 by 5 is 1.6, that is 3.4 plus 1 is 4.4। तो आपका जो स्कोर है सी का उसमें 4.4 अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तो कितना आंसर आ गया, 97.4। इज दैट फाइन? प्लीज डू आस्क। जो सेकंड वाला था, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 10, व्हाई, बिकॉज 10 पॉइंट्स हम दे रहे थे, तो ये 0.8 होगा, तो 1.8 प्लस 0.8 इज 2.6 प्लस 1 इज 3.6, सॉरी 3.6 का ग्रोथ होगा। 93.8 पहले था, अगर 3.6 और बढ़ा दूंगा तो ये 97.4 हो जाएगा, तो मेरा आंसर 97.4। इसका मतलब ये सही है। उसने लिखा है, सही नहीं लिखा उसने, क्या लिखा है उसने, लिखा है डेफिनेटली फॉल्स, तो मैं कहूंगा मेरा आंसर पहला वाला सही है, तो वो तो हो ही नहीं सकता आंसर, दैट इज नॉट करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द सेकंड पॉइंट, his final score increases by exactly 2 points. आपने कहा सर मैक्सिमम जो इंक्रीज हो रहा था, अभी हमने किया था पीछे, मैक्सिमम जो इंक्रीज हो रहा था वो हो रहा था 3.6। मिनिमम इंक्रीज पता कर लेते हैं क्या होगा। मिनिमम इंक्रीज तब होगा भाई लोगों जब आप इनको पॉइंट्स दोगे। आई कैन गिव 8 पॉइंट हियर एंड 20 पॉइंट हियर। 28 पॉइंट डिवाइडेड बाय 20 इज 1.4। आपने कहा 32 है, तो 4 by 15 is 0.3 approximately. The minimum increment in the final score will be 1.7 and maximum is 3.6. तो आपका स्कोर 1.7 से लेके 3.6 तक कुछ भी इंक्रीज हो सकता है। 2 lies in that. So we are not sure whether the 2 points can be increased or not, but it lies in this range. So right now we can ignore it. अगर कुछ और नहीं हुआ तो हम लास्ट में इसको मार्क कर देंगे। Sometime you need to also understand this. Let's move to the next one. Question number 3. C's final score can be highest among the given student. आपको खुद पता है अभी हमने C का स्कोर जो था हमने हाईएस्ट कर दिया था बिकॉज इट वाज इंक्रीजिंग बाय 3.6, तो ये 97.4 आ रहा था।
From the given score, no one is scoring as much as C. तो ये भी सही हो गया, फर्स्ट भी सही हो गया, मुझे फॉल्स चाहिए. Fourth, C can have equal average score in all groups. Okay. What is the average score of C in the first one? 82 यहाँ है, यहाँ 93 है, यहाँ 92 है. I'll treat the average as a 82. One is getting 11 more, second is getting 10 more, divided by 3 होता है. तो what is 3 of this? 11 plus 10 is 21 by 3 is कितना? 7. 82 plus 7 हो गया 89. तो आपने कहा इसका यहाँ का एवरेज स्कोर इज 89. फाइन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. आपने कहा उसके बाद जो है सेकेंड वाले पॉइंट में कितना होगा. यहां पर 89 आ रहा है, यहां पर 94 है, यहां पर 94, 98. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड 96 क्यों लिया. ये 4 ज्यादा डिवाइडेड बाय 2 इज 96. दिस इज ऑलरेडी 97. दिस इज 12 मोर, 12 डिवाइडेड बाय 2 6. 186 का एवरेज इज 93. आपने कहा अगर आपके 32 पॉइंट्स दिए जाए, क्या सबका एवरेज सेम हो सकता है. हमने कहा कोशिश करते हैं भाई. सबसे बड़ा जो एवरेज स्कोर है वो अंडर वाटर एक्टिविटीज का 97. 89 को अगर मुझे 97 करना है तो मुझे 8 से एवरेज बढ़ाना है. बट 8 से अगर आप बढ़ाओगे तो 100 में 89 को अगर आप 97 करना चाहते हो, यू विल इंक्रीज द एवरेज बाय 8. बट ये तो 100 में बढ़ा, अगर 300 में बढ़ाओगे तो 24 होगा, क्योंकि सबको आप 8 का एवरेज दोगे. सो दैट कम्स आउट टू बी 24 पॉइंट्स विल बी गिवन टू दिस. 94 वाले 19 करना है, 3 पॉइंट्स यहां दिया, 27 पॉइंट चला गया. 96 वाले को 97 करना है तो एक मतलब 2 जगह आपको देने पड़ेंगे, तो यू विल गिव 2 मोर पॉइंट्स, दैट गिव यू 29. 97 तो था, यहां कोई पॉइंट देने की जरूरत नहीं है. 93 को 97 करना है तो यू नीड टू गिव 4 पॉइंट्स टू दिस. बट ये 400 में से है तो 16 पॉइंट विल कम. तो 29 प्लस 16 विल कम आउट टू बी 45. मतलब अगर आपको 32 की जगह 45 पॉइंट्स दिए होते तो आप सबका स्कोर बराबर कर लेते. दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड so that everyone is getting the same score. आपने कहा यही गलत है भैया, 32 पॉइंट में मेरे बस की तो नहीं है सबको बराबर करना. So which one is false? I'll say it is the C1 which is false. My answer is the fourth one. Any query you can ask. आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी ऑप्शन में अगर आपको डाउट है तो you can simply type. I'll try to answer that. Option 2. His final score can increase exactly by 2 points. सिर्फ 2 पॉइंट से इसका फाइनल स्कोर इंक्रीज कर रहा है. सलोनी ने पूछा है. मिनिमम मैम अगर आप करोगे तो 1.7 इसका एवरेज इंक्रीज होगा अगर आप 32 पॉइंट देते हो, और मैक्सिमम में 3.6 है. क्या 2 लाइज करें 1.7 एंड 3.6 के बीच में? यस मैम. सो आई विल से दैट 2 मे बी पॉसिबल, बट वो क्या पॉइंट्स होंगे दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. बट यस, इट लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम. दैट्स व्हाई सेकंड मे बी करेक्ट. मैंने मस्ट भी नहीं बोला, क्योंकि आपको पॉइंट्स देने आने चाहिए. मैंने कहा चेक करता हूं, कुछ नहीं होता तो मैं इसको मार्क करूंगा, नहीं तो अदरवाइज इट मे बी करेक्ट, इट मे बी फॉल्स. Saloni, is it clear? Option 4. That is what Akashdeep is saying. यार आकाशदीप, इसमें सी के क्यूमुलेटिव सम ऑफ पॉइंट्स, इसका एवरेज अगर 89, 94, 96, 97, 93 दिया है. यार 89 को अगर मुझे 97 करना है तो मुझे 8 इंक्रीज करना है. बट दिस इज 8, आप हर एक को 8 दोगे, क्योंकि दिस इज दे आर 3 गेम्स. आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में दोगे तो दे आर 3 गेम्स वेयर यू हैव टू गिव 8 to each one, then only your score will increase by this. So 24 points will be given so that the average score of adventure sports will come out to be 97. 3 will be given here because it is 94. 97 करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही गेम है तो उसमें दूंगा. Here 94, 98, average of that is 96. I want to increase it to 97. मुझे 1 का increase करना है, but 2 गेम है, so I'll increase it by 2. Here it is 93. I want to increase it by 4. 97 करना है तो. So what I will do is 4, but the score is not out of 100, the score is out of 400. तो मुझे 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 400 में से स्कोर आएगा, which is coming out to be 16, which gives you 45. So even if you want a minimum point, it should be equal to 45 points. Then only the average of all of them would be same. Fine. So sorry, I have one more class. I think it is sufficient. We'll continue with this discussion on the weekdays. Before that, you can complete your sheets. And then we will start, in the next classes, we'll
We'll take the next other questions which are left. Thank you all. Yeah, I'll share the answer sheet. I'll share the answer sheet. Okay, thank you. Bye.